There seems to be an active attempt underway to try and spoil the communal atmosphere in Uttar Pradesh. And this is at a time when it is the month of Sawan. Religious fervor is at its peak in the state, and hundreds and thousands of Kanwarias or Shiv Bhakts have also congregated across Uttar Pradesh. They are traveling across Uttar Pradesh. And at a time like this, the UP police has made a serious charge of how a plot is being hatched. The coincidence is too much to ignore. First came repeated episodes of how mystery namazis offered prayers in public places, and the videos went viral. And now, as the Kanwar Yatra in Uttar Pradesh is at its peak, come two incidents which make the police fear that communal crimes are being orchestrated in order to spread violence and divide amid communities. The Bijnor police has arrested two brothers named Kamal and Adil for desecrating a dargah in the town. The two were caught by locals in the act when they broke the mazar and burnt the holy cloth placed around it. The shocking part is that both of them were seemingly masquerading as Hindu devotees with a saffron safa tied on their head. Eyewitnesses tell Times Now that they suspect this was well thought out conspiracy because of the preparation that was done. According to them, Adil and Kamal came to the dargah on a motorcycle that did not have a number plate. They had a hammer and chisel with which they destroyed Jalal Shah's mazar and Qutub Shah's mazar as well. Eyewitnesses tell Times Now that they suspect this was well thought out. The police says that the aim was to spread animosity. मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल बगैर नंबर हो गई थी। किस टाइम पहुंचा था वो यहाँ पर? यहाँ 5:30-6 बजे। दोबारा आया वो एक दफा आके। पहले आया तो क्या करके गया था? हाँ, पहले आया था तो वो चादर फूंक गया था। अच्छा, फिर बाहर यहाँ इकट्ठी करके यहाँ बाहर निकाल के अच्छा करा के बाहर निकाल के फूंकी उसने, नहीं अंदर तो और भी नुकसान होता। अच्छा, पहले चादर में आग लगाई। हाँ, और उसके बाद में दोबारा फिर आया। उसके बाद चला गया गाँव में। अच्छा, फिर कितनी देर बाद आया? नमाज पढ़ के आया। फिर कितनी देर बाद आया वहाँ से नमाज पढ़ के? वहाँ से आया करीब कोई आधा-पौन घंटा बाद में। फिर आया। और फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर आके सरकार का जो अंदर बाजार तोड़ने लगा। किस चीज से? तो छीनी हथौड़ा था उसके पास। Timing of the incident shows that there must have been some motive behind it, and definitely it was an attempt to vitiate the communal atmosphere because of two reasons. One reason is that the maximum Kanwar peak load was there yesterday, and that day in the neighboring area of Haridwar in district Bijnor, there has been attempt to damage religious shrine at 3 places. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Tushar Gupta, Senior Editor, Swaraj, Vinod Bansal, National Spokesperson, BHP, Zubair Memon, Political Analyst, Majid Hydari, Political Analyst. First question, National Spokesperson, Samajwadi Party, Anurag Bhadoria. Anurag जी, आपको अजीब नहीं लगता कि कोई भगवा पहन करके मजार पे क्यों हमला करेगा? यही तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? इस तरह के कैसे लोग आ जा रहे हैं समाज के अंदर में? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में नफरत की राजनीति देखने को मिली। आखिर क्यों भाई? कहाँ इनका कानून व्यवस्था, कहाँ इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तभी तो उन दोनों को पकड़ करके जेल में डाला हुआ है। पर आप ये सोचिए, इनको अगर नहीं पकड़ा होता तो अभी ये वीडियो वायरल हो रहा होता जहां पे कहते कि भगवा आतंकवाद ने जाकर के 3 दरगाह को ध्वस्त कर दिया। कौन ये नैरेटिव फैलाना चाहता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां चला जाता है? कानपुर में एक घटना हुई थी तो वहां प्राइम मिनिस्टर आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, उसके बाद भी उस घटना हुई तो इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूं। सर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो पकड़ लेगा। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, ये कौन लोग हैं और ये क्यों ये भगवा आतंकवाद किस्म की थ्योरी फैलाना चाहते हैं? मजारों को ध्वस्त करके वहां भगवा पहन के क्यों पहुंच जाते हैं? तो यही तो पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए ना, आखिर उनकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी थ्योरी क्या है सर? आपका स्टैंड क्या है कि क्यों हो रहा है?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आखिर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, कौन फ्रिंज एलिमेंट पर आपका स्टैंड क्या है? फ्रिंज एलिमेंट ये कौन है? चलिए अब आप फ्रिंज एलिमेंट तक आए, कौन है ये फ्रिंज एलिमेंट और क्यों कर रहे हैं ये क्यों भगवा पहन के पहुंचते हैं? इस देश के, मैं बोल तो रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, तो सरकार बताए ना क्यों कर रहे हैं। सरकार थोड़ी ना इनको भेज रही है भगवा पहना के, सरकार तो पकड़ेगी, भेज कौन रहा है, सवाल ये है। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है ये काम? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। नहीं, उदयपुर की घटना आपको याद है? आखिर कौन लोग थे? भारतीय जनता बताए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे कि नहीं थे उदयपुर में जो घटना हुई थी? आपको पता है ना कि उदयपुर में जो घटना हुई थी, क्योंकि हर बार उसका जिक्र हो जाता है, वो दावती इस्लामी को मानते थे। अब तो जो पाकिस्तान से आदमी आया है मारने के लिए, उसको भी आप कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस तरीके से, हमारी सरकार में तो नहीं हुआ कभी भी, न किसी मॉल में वहां नमाज पढ़ी गई, न इस तरह की घटना हुई। आखिर बीजेपी की सरकार में घटनाएं क्यों हो रही हैं? अच्छा बताइए विनोद बंसल जी, अखिलेश जी की सरकार रही, मुलायम जी की सरकार रही, क्यों नहीं हुआ ये? अब क्यों हो रहा है योगी जी की सरकार में? देखिए सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस तंत्र को साधुवाद दूंगा जो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेरियो था। मैं कहता हूं इंटेलिजेंस सजग था, जागरूक था, इसी के कारण वो जिहादी पकड़े गए, अन्यथा तो आज क्या स्थिति होती। आप देखिए कि आज जो है हम डिबेट कुछ और टॉपिक पर कर रहे होते, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता और ये होता कभी समाजवादी पार्टी सारे नमाजवादियों के साथ खड़े होती, पूरी समाजवादी पार्टी नमाजवादियों के साथ खड़ी होती, इस्लामिक जिहादियों के साथ में खड़ी होकर के और आगजनी में सहभागी होती। अरे भैया ये बताइए, हाजीपुर के अंदर, मुंगेर के अंदर जो साधु वेश में जो मुसलमान थे उनको किसने पकड़ा, क्यों पकड़े गए, क्या कर रहे थे वो? आप मुझे बताइए, भगवाधारी मुसलमान बनकर के बागपत में हथियार लेकर के मंदिर में घुसे, क्या कर रहे थे वो? कौन थे वो? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो? अरे मुरादाबाद के अंदर कांवड़ यात्रा को रोकने वाले कौन लोग थे आखिरकार? आप मुझे बताइए, कोई एक इंसिडेंस है कि अनगिनत है? गोरखपुर की बात हो, मुजफ्फरपुर की बात हो, मेरठ की बात हो, हाजीपुर की बात हो, मुंगेर की बात हो, अरे भाई एक लंबी फहरिस्त है। हमारी सारी यात्राओं को रोकने के षड्यंत्र जो है देशव्यापी हो रहे हैं और ये मैं कहता हूं धन्यवाद है उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? यहाँ पर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि राजनीति के लिए हो रहा है, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? मैम जो चीज आपने अभी देखिए, अनुराग भदौरिया जैसे लोग या कांग्रेस की कोख से जन्मे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस्लामिक जिहादियों को कवर फायर देने का काम करती हैं और ये कवर फायर देने के कारण ही जो है ये सब घटनाओं दुर्घटनाओं को जन्म देती हैं ये लोग। ओके, तो कम से कम इंटेलिजेंस ने समय पर आप डेफिक्रेट कीजिए और फिर बदनाम कीजिए, सिखा दिया। लेकिन मैं पहले किसी के धर्म पे हमला कीजिए और दूसरे धर्म को बुरा नाम दीजिए। मेमन साहब जी, जिस तरीके से आपने बताया और शुरुआत में जो क्लिप चली लोकल वहाँ के कोई मौलवी या कोई लोकलाइट थे दरगाह के, उन्होंने क्लियरली बताया कि कोई दो लोग आए बिगर नंबर प्लेट की गाड़ी पे, आके चादर को जला दिया, फिर चले गए, फिर 1.5 घंटे बाद आए और फिर वहां पे जाकर डिस्ट्रक्शन का काम किया। ये लोकल पुलिस अथॉरिटी की नाकामी ही मानी जाएगी। उसके भी आगे हम चलते हैं, हमने और भी कुछ वीडियोस देखे जहां पे कई घंटों तक एक पुलिस स्टेशन को ही उद्ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में कर क्या रहा है? अरे भैया कहीं कोई भगवा पहन के दरगाह तोड़ रहा है, कहीं पे कुछ कावड़िया पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही उद्ध्वस्त कर देते हैं। अरे पुलिस प्रशासन इतने घंटों तक कर क्या रहा है उत्तर प्रदेश? सर वो तो पकड़ लेगा ये। चादर जलाता। मेमन साहब, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू आस्क यू, यू आल्सो नो दैट इट इज वेरी फैसाइल टू आर्ग्यू कि पुलिस वाले हर जगह मौजूद क्यों नहीं थे। कोई इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि ये लोग कौन हैं जो कि आते हैं भगवा पहन के और फिर किसी के धार्मिक स्थल पर हमला करते हैं? क्या इसका व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट डू दे वांट टू डू? मैं बता रहा हूँ कौन लोग है ये। कौन लोग है ये? वही लोग हैं जो खतना करके और दाढ़ी टोपी पहन के महात्मा गांधी पे गोली चलाए थे। ये वही लोग हैं जो पुलिस स्टेशनों पे जाकर पुलिस स्टेशन उद्ध्वस्त किए। ये वही लोग हैं जो किसी पार्टी प्रवेश में जाकर के उदयपुर में हत्याकांड किए। ये वही आतंकवादी है जो देश का पीस और हार्मनी को बिगाड़ते आ रहे हैं। ओके, तो आपको ये भी लगता है? अच्छा ठीक है, तो चलिए ये दोनों आदमी भी बीजेपी के कार्यकर्ता निकलेंगे अकॉर्डिंग टू यू। मुरादाबाद में जो द लेडीज हु वर सिटिंग ऑन द रोड एंड ब्लॉकिंग कावड़ियाज, जो बच्चों को बैठा दिया था, वो भी भाजपा के लोग थे।
जो कि महिलाओं और बच्चों को रास्ते में डाल दिया कांवड़ यात्रा के और कहा कि हम कांवड़ियों को नहीं निकलने देंगे। पिछले 2 महीने में जितनी रिपोर्ट्स हमारे पास आई है इन्वेस्टिगेशंस के बाद पुलिस के द्वारा, उसमें तो ज्यादातर केसों में भाजपा के लोग लिप्त पाए गए हैं। इसमें भी हो सकता है पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार हो करेंगे। सकता है। अच्छा तुषार गुप्ता, ये भी हो सकता है, करेंगे हम। ये भी बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप होगी। पद्मजा, अनुराग भदौरिया जी का तो बस चले, वो तालिबान को भी बीजेपी का आउटफिट डिक्लेयर कर देंगे। समाजवादी के सरकार में क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते थे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि किसी के सामने प्रॉब्लम आती नहीं थी। आज बीजेपी के राज में क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, उनके जो पूरे ये जो उनके इंटेंशंस है, इफ दे आर बीइंग कॉट रेड हैंडेड, तो बीजेपी की सरकार बुरी है। अनुराग भदौरिया जी चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, सुनिए, मैंने आपको सुना ना, आप सुनिए 1 मिनट। पद्मजा, 2 बातें हैं। एक ना ऑल आउट फ्रंटल अटैक होना शुरू हो गया है हिंदू फेस्टिवल्स के अगेंस्ट। कभी जुडिशरी करती है दिवाली पर, कभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन करता है कुंभ के मेले पर, कभी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं गणेश पूजा पर, रामनवमी की प्रोसेशन निकलता है, उसमें पत्थरबाजी होती है, और अब आज ये। तो एक ऑल आउट सिस्टमैटिक अटैक होना शुरू हो गया हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू कस्टम्स के अगेंस्ट, और ये उसी का हिस्सा है। पर बात ये है कि अनुराग भदौरिया और जुबैर मेमन जैसे लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की। आप इनसे अभी पूछिए कि ये वायलेंस क्यों हो रही है, इनकी एकदम चुप्पी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं, इन पर इनका तुषार गुप्ता कह रहे हैं कि ये जानबूझ के कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश थी, कि ये दिखाने की कोशिश, देखो कांवड़िए निकले उत्तर प्रदेश में और दरगाह पर हमला हो गया। अच्छा ये बताइए, उस पर आप चुप क्यों हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर करते रहेंगे, बट किसी एक फेस्टिवल को बदनाम करने की कोशिश पे आप क्यों नहीं बोल रहे? हाँ तो उसी पे तो पूछ रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों को पकड़ के पूछा होगा ना किसने भेजा है, बताए सरकार। अब तक तो पूछ लिया होगा, अब तक क्यों नहीं बता रही किसने? सर आप ये तो मानेंगे ना कि किसी सावन के महीने में इस तरीके की हरकत करना यानी किसी धर्म को बदनाम करने की कोशिश थी। आप स्टैंड तो लीजिए, जो ये कोशिश की गई है क्यों की गई है, आपका क्या थ्योरी है इस पे? कोशिश नहीं, इस तरह के लोग कौन है जो समाज के अंदर में इस तरह की बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, ये जो धर्म की राजनीति। अरे वही तो सवाल है, वो लोग कौन है और आप इनको पॉलिटिकल कवर को बदनाम करने के लिए, कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए कौन है ये दोनों लोग? सरकार बताए, सरकार ने तो पकड़ लिया ना, किसने भेजा था इन दोनों को? पर इन प्रिंसिपल आप मान रहे हैं कि ये किसी एक फेस्टिवल को या धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई थी? ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि आदमी वहां पहुंच जाएगा और अपने सर पर वो भगवा बांधा हुआ है। आप ये बताइए कल को कोई आदमी ऐसे रैंडमली घूमता हुआ मिलेगा और उसने टोपी पहनी हुई है, आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत रैंडम है या ये जानबूझ के नफरत फैलाने की कोशिश है? पद्मजा जी आप आज कंफ्यूज हो गए, फंस गए आप बीजेपी का पक्ष लेते लेते सवाल ही नहीं पूछ पा रहे। सवाल पूछिए क्या है, आपको पता ही नहीं। अरे सवाल तो बहुत स्ट्रेट है अनुराग जी, आप उसको ऐसे घुमा के पूछेंगे और ऐसे घुमा के पूछेंगे, सवाल एक ही है। एक आदमी भगवा पहन के मजार क्यों तोड़ता है? क्या ये हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं है? पीरियड। कांवड़ियों को, सावन को, कांवड़ यात्रा को, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है, हाँ या ना? ये सवाल का जवाब सुन लीजिए। सवाल का ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछता हूं सरकार ने पकड़ा है, कौन लोग हैं, किसने भेजा था, बताए सरकार क्यों बदनाम करना चाहती हिंदू धर्म को? आपकी थ्योरी क्या है, आपका स्टैंड क्या है, कौन कर रहा है बदनाम? सरकार तो करेगी इन्वेस्टिगेट। आपके हिसाब से ये कौन लोग हैं और क्यों हो रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने पकड़ लिया ना, अब सरकार बताएगी ना किसने। तो आपका कोई स्टैंड नहीं है एज अ पार्टी, आप बस सवाल पूछेंगे। विनोद बंसल, आपका कोई स्टैंड नहीं है सर, अदरवाइज आपको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन उचक्का है, कौन इनोसेंट है, इसमें आपका कोई स्टैंड नहीं है। आप फंस गए पद्मजा जी, आज आपके फंसी मैं नहीं हूँ सर, पिछले 15 मिनट जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कौन फंसा है। विनोद बंसल जी, आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ये दोनों लोग कौन हैं? विनोद बंसल जी। पद्मजा जी देखिए, इनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, ये बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप देखिए पद्मजा जी, इनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। इनका स्टैंड जो बोले कुछ नहीं, लेकिन आपको सीधी तरह से अच्छी तरह जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो जिहादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और हिंसा फैलाने वालों को कवर फायर देने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए ये आदिल और कमाल कौन है? आप मुझे बताइए जो लुल्लू महल में जो पकड़े गए मोहम्मद रिहान, आतिफ खान, लोकमान, नोमान, आदिल, इरफान, संदीप, ये कौन लोग हैं आखिरकार? नाम बताए ना, ये नाम से पता नहीं लगता आपको कौन लोग हैं और आखिरकार किस मानसिकता से आ रहे थे? और ये जो है
ये कहते हैं कि भाई ये मुसलमान है और भगवाधारी अपने साधु के वेश में मंदिर में घुस रहे हैं और साथ में हथियार लेके जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये और किस लिए जा रहे हैं? साफ साफ बात है। Majid Hydari, why is there such a fear of taking a stand? उसके बाद में सरकार बाहर आती है vis-a-vis who these people are, unless it is about just trying and shifting the goalpost till the time you finally manage to link Kamal to Kamal in some way. For the first 1 week after the murder of Kanhaiya Lal, किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, किसी ने कुछ कंडेम नहीं किया, बस एक ब्लैंकेट कॉन्डमनेशन दे दिया। जैसे ही वो तथाकथित बीजेपी लिंक निकल के आया, एवरीवन जंप्ड एंड जब देखो ये तो सब बीजेपी ने किया है। अब अमरावती में सब चुप है क्योंकि वहां कोई लिंक नहीं निकला, तो अमरावती में एवरीवन सिटिंग क्वाइट। Why can't you take a stand on who these people are and what their intention is? Well, exactly, Padmaja Sahiba, this is a really serious issue, and then let's look at the plot. Two youths from a particular community desecrate the shrine of their own community. Now, is it possible without indoctrination? The answer is no. So, who is responsible for this indoctrination is the main question. And the answer lies in the new variant of saffron terror, which is indoctrinating the innocent Muslim youth against their own community or otherwise to keep the pot of communal hatred boiling. And who is getting benefited from this politics of communal hatred? It's only the Saffron Brigade and nobody else. Then why is the Yogi government arresting them? अगर उनको इतना indoctrinate करके भेजा है, तब तो बहुत ही बेवकूफ होंगे कि उनको फिर अरेस्ट भी कर लिया। No. See, one thing very peculiar about this incident. They were wearing saffron robes, which means wearing saffron in UP gives you the license like Saath Khoon Maaf. It's a Saath Khoon Maaf moment for people there. So this is what the Home Ministry needs to look into. That saffron is being misused in UP, and that is what has got exposed from this new variant of saffron terror. Mr. Hydari, you can come up with the most facile of explanations, but you still haven't answered. Why would somebody go desecrate a mazar and wear saffron? Why would a Muslim desecrate his own sacred shrine? To blame that is Hindus the basic for question. it. It's not To blame possible without Hindus for it. indoctrination by someone from the Saffron Brigade. Because you want to spread hatred, sir. If you can't see that, then there has to be some next level of denial that you're in. It's as clear as that. It's common sense. Since 2014, only one community is getting benefited, one party ideology is getting benefited by the politics of hatred, and that we all know. So why don't we look? Why don't we call हो क्या रहा है कुछ पार्टी की नहीं एक सेकंड, कुछ पार्टी की जो दुकानें हैं ना वो चलती है माइनॉरिटी अपीजमेंट पे। तो अगर हिंदू के किसी फेस्टिवल को बदनाम करने की साजिश की जाती है और पकड़ी जाती है, अरे ये तो बीजेपी ने करवाया होगा, पर यही कहानी दूसरी तरफ हो कि देखिए बीजेपी की सरकार है तो ऐसा हो रहा है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो रहा है तो बीजेपी ने करवाया होगा नफरत फैलाने के लिए, और अगर किसी और के खिलाफ कुछ हो रहा है, अरे बीजेपी की सरकार है ऐसा तो होना ही था। मतलब स्टैंड हम किसी के अगेंस्ट ही लेंगे, बदनाम हम हिंदुओं को ही करेंगे क्योंकि माइनॉरिटी अपीसमेंट पर दुकान चलानी है। दिस इज द स्टैंड ऑफ द समाजवादी पार्टी, दिस इज द स्टैंड ऑफ ऑल दोस पीपल हु वांट टू गिव सच इंसिडेंट्स पॉलिटिकल कवर फायर। बॉटम लाइन। All right, and that is the most dangerous for any community. There can be no cover fire for people like this, irrespective of which community they come from. Fortunately, though, these two have been discovered, they've been called out, they've been arrested. We must guard against all the others and Kamals of this kind. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. Thanks for watching.